Good morning. In chemical kinetics, this is part 2. If we consider a reaction, I told you that when the reactions are there, the reactant concentration decreases and the concentration of product is increasing. So, एक reaction consider करो, 2HI is equal to H2 plus I2. Okay. So, their stoichiometric coefficient of reactant is not 1, here it is 2, here 1, here 1. So rate of reaction, rate of disappearance of any of the reactant or rate of appearance of product is divided by their respective stoichiometric coefficient. Like 2HI is equal to H2 plus I2. तो rate of reaction कैसे देंगे? कोफिशिएंट क्या बेटा यहाँ 2, और ये माइनस क्यों लेते हैं? क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है. सो माइनस हाफ. कहाँ से हाफ आया? 2 ये वाला कोफिशिएंट. सो माइनस हाफ डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI डिवाइडेड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा H2 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T. यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो नथिंग वी विल राइट, डिवाइड बाई, is equal to delta I2 upon delta T. Similarly, another reaction if you will consider, ionic reaction, 5Br minus BrO3 minus 6H plus is equal to 3Br2 plus 3H2O. So here 5 is the coefficient beta and this is the reactant side. So minus 1 upon 5 Br, delta Br concentration upon delta T is equal to minus, no coefficient is there. So minus delta BrO3 minus divided by delta T is equal to coefficient is 6. So 1 upon 6 minus लगाओगे है ना, क्योंकि reactant side है. So minus 1 upon 6 delta H plus, अब डेल्टा को बाहर लिखते हैं, अंदर नहीं लिखते हैं ना, तो डेल्टा H plus upon delta T is equal to 1 upon 3 पॉजिटिव साइड, 1 upon 3 प्रोडक्ट में पॉजिटिव, 1 upon 3 डेल्टा Br2 upon डेल्टा T, और H2O में भी 3 is the coefficient. So 1 upon 3 delta H2O concentration upon delta T. So for a gaseous reaction at constant temperature, the concentration is directly proportional to partial pressure. So rate is expressed as rate of change in partial pressure of reactant or product. Gaseous reactant में क्या होता है बेटा? Concentration is proportional to partial pressure. So rate is expressed as rate of change in partial pressure of reactant or product. Okay. One numerical I am showing you here, that is example number 4.2. It is solved in the book, but let us understand this. The decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration was 2.33 mole per liter, and after 184 minutes it is reduced to 2.08 mole per liter. Reaction is like this. Okay. So first we have to calculate the average rate of reaction in hours, minutes and second, and what is the rate of production of NO2. ठीक है. तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है? माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा आर मीनिंग क्या होता है? R2 माइनस R1. पॉजिटिव लेने के लिए R2 माइनस R1 करते हैं. ठीक है. So we will write here the concentration rate is equal to, या average rate लिखो, average rate is equal to half into, माइनस हाफ लेना पड़ेगा, माइनस हाफ, एंड concentration क्या है? 2, what is our R2? 2.08 minus what is our R1? 2.33 divided by what is our T? T2 minus T1, that is 184 minutes. So let it be 184 only. When you will calculate, it will give you the value, that is 6.79 into 10 raised to power minus 4 mole liter inverse per minute, या मिनट इनवर्स. ओके, सेम है. नाउ इसी चीज़ को हमें अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस हाफ 2.08 माइनस 2.33 डिवाइडेड बाई 184 इज़ द मिनट. तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो.
So this will give you the value minus 0.25 divided by 2 into 184 into 60. ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया और ये बाहर माइनस है तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस कर दो इसे, इज इक्वल टू, इफ़ यू विल डिवाइड इट विल बिकम 1.132 इंटू 10⁻⁻5. ठीक है, मोल लीटर इनवर्स तो है ही हमारे पास और नीचे सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया तो सेकेंड इनवर्स. इन दिस वे इट इज़ कैलकुलेटेड. आर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, 184 मिनट को पहले ही से तुम आवर में कन्वर्ट कर दो. ओके, 60 से डिवाइड कर दो. सो 184 को 60 से डिवाइड करते हैं तो 3.066 आता है. ओके, सो वी विल राइट एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू ऊपर 25 है 0.25 डिवाइडेड बाई 3.066. कहाँ से आई ये वैल्यू, हमने 184 को 60 से डिवाइड करके आर्स बना लिया है ना, और ये माइनस माइनस विल बिकम प्लस तो प्लस कर दो यहाँ. तो आंसर विल बी, हियर आई हैव कैलकुलेटेड 4.076 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर आवर, पर लीटर पर आवर. ठीक है, in this way it is calculated. And second part of the question, rate is equal to 1/4 delta NO2 का concentration divided by delta T is equal to, simply you have to multiply it with 6.79. अपने को 1/4 इतना है तो पूरा का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा. ठीक है ना, 1/4 का कॉन्सेंट्रेशन इतना है जो दे रखा है, हमने अभी कैलकुलेट किया है. ओके, तो फुल NO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 6.79 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 4, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो आंसर हो जाएगा. यू अंडरस्टूड दिस, बिकॉज सभी रेट आपस में इक्वल हैं. दिस इज इक्वल टू 1/4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2. तो व्हेन दे आर इक्वल दैट मीन्स इट इज़ ओनली दिस. सो 1/4 का कॉन्सेंट्रेशन इतना है तो पूरा NO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड द आंसर विल कम दिस. बट नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग हियर. आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन हियर. सो इट इज़ फॉर द रिएक्शन R2P. ठीक है, रिएक्शन के रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 to 0.02 molar in time both in minute and second. We have to find the average rate of reaction. So what I will write here, average rate of reaction is equal to average, solution लिख दूँ, solution, average rate of reaction is equal to minus delta R upon delta T. सो आर डेल्टा आर मतलब क्या होता है, R2 माइनस R1. सो इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज अवर R2, लिख दो पहले, R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा टी मीन्स क्या होता है बेटा, T2 माइनस T1. सो इज इक्वल टू व्हाट इज अवर वैल्यू ऑफ R1 माइनस 0.02, R2 की वैल्यू 0.02 माइनस 0.03 divided by time is, how much is the time given, 25 minutes. So 25 is equal to, when you will calculate it will become, इसको माइनस ऐसे रख दो, ऐसा माइनस रहेगा तो ही पता चलेगा ना बेटा. तो जो भी वैल्यू आएगी ये माइनस में आएगी, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वैल्यू हो जाएगी. सो आंसर विल बी, व्हेन यू विल डिवाइड, आंसर विल बी 4 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है, यूनिट क्या आएगी, मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बोथ इन मिनट एंड सेकेंड. तो सेकेंड में करने के लिए क्या करोगे, सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इज इक्वल टू
let me show you only. 0.02 minus 0.03 हो जाएगा -1. तो it will be, here we will write, when we will convert 25 minute is equal to 25 into 60 सेकेंड कन्वर्ट कर दिया और उसको तुम डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी 6. do one thing. Can I write here children? 25 6 are 150, so 1500 सेकेंड कर दूँ इसको डायरेक्ट. देन सेम फार्मूला वी विल यूज़, माइनस 0.02 माइनस 0.03 डिवाइडेड बाई 1500. सो ये 0.01 है और माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, तो इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाई 1500 इज इक्वल टू, when you will divide 0.01 divided by 1500 is equal to कितने 0 1 2 3 4 5 6 6.67 into 10 raised to power minus 6. Understood? So this will be the answer. Same way second question we will do. In a reaction 2A is equal to P. So concentration is decreased from this to this, 0.5 से 0.4 हो गया. Calculate the rate. What we will write? Average rate is equal to minus half delta A upon delta T. हाफ कहाँ से आया बेटा? यहाँ क्यों हाफ लिखा? बिकॉज कोफिशिएंट इज 2. गुड. तो इज इक्वल टू वी विल राइट माइनस हाफ, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय, अब ये लिखने ऐसा ब्रैकेट डालने की अब ज़रूरत नहीं भी है, ऐसा कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, अपॉन टाइम इज़ 10 मिनट्स. ठीक है. तो व्हेन यू विल कैलकुलेट इट विल गिव यू द वैल्यू 0.005 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स. ठीक है. कैसे किया? पॉइंट माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, सो 0.5 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 20 is equal to 0.005 mole liter inverse minute inverse. In this way we will solve the questions.